नमस्कार। डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं श्री संजय जैन जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद MBA फिनिश करने के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एज ए प्रोफेशन डेवलप किया और उसके बाद से जैनिज़्म के बहुत सारे डीपर स्टडीज़ के बाद आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत ऐसे काम करते हैं जो समाज में बहुत लोगों के लिए बेनिफिट होता है। ऐसे काम भी वो बहुत कर रहे हैं। सर, आपको स्वागत है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो हम जानेंगे सर आपसे कि जैनिज़्म के जो स्टडीज़ हैं, जो फिलॉसफी है, थोड़ा आप ब्रीफली थोड़ा बताइए। देखिए, जैनिज़्म जो एज रिलीजन है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द कंट्री एंड there is a myth that the Jainism was started from Lord Mahavira, whereas the fact is that Jainism actually started from Lord Adinath, also known as Lord Rishabdev ji, who was the first of the Tirthankars. And we have had 24 Tirthankars in the hierarchy, of which Lord Mahavira was the last Tirthankar, the 24th Tirthankar. So it was Lord Mahavira who was born in the year 599 BCE, that he during his lifetime reorganized and rephrased the various teachings, the philosophies of Jainism in a much more simpler manner, so that it could be understood by the people, and it made it so easy that they could also follow these principles and things. And of the main principles, the main principle of Jainism is targeting to achieve a goal. Now, what is that goal? The goal is to achieve salvation, that is moksha. Whether be a monk, whether be a Shravak or Shravika, like followers, the male and the female, they all are striving to achieve a goal, which is salvation and moksha. Now, during this process, some may go 2 steps, some may go 4 steps, some may go 5 steps. A few may achieve moksha also. So, the philosophy of the religion revolves around building our personality and inner self in such a manner that we achieve salvation. Now, how do we achieve? So they have said that there are basically 5 vows which have to be taken, which would show us the path of achieving the salvation or the moksha. And these 5 are ahimsa, that is non-violence; aparigraha, that is non-possessiveness; asteya, that is non-stealing nature; then satya, which is truth; and brahmacharya. सर, आपके जो गुरुज के जो स्टेजेस हैं, हम तो तीर्थंकर महावीर 424 तीर्थंकर महावीर जी का ही नाम सुने हैं। उसके बाद से जो आप स्टेजेस और भी हैं, दिगंबर्स हैं, श्वेतांबर्स हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफली उसको भी बताइए। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो सेक्ट्स हैं वो कितने हैं मेनली, तो पॉपुलरली जो नोन है वो दिगंबर एंड श्वेतांबर है। और श्वेतांबर में भी फिर जो फर्दर डिवीजन हुआ ऑफ लेट वाज स्थानकवासी, एंड उसमें से एक और छोटा सा ऑफशूट निकला 13 पंथ का। बट जो लॉर्ड महावीरा के टाइम से, एज पर आवर स्क्रिप्चर्स, इट वाज मेनली द श्वेतांबरा सेक्ट, which means Shwetambar is सफेद कपड़ा. So basically white clad monks were
the part of the Shvetambara community. And in Digambar, it is Dig and Ambar, which means sky-clad clothes are there, which means they believe that it is the sky which is clothing them, so they don't wear clothes, the monks. There are a few differences in the way they do the puja, some concepts and some beliefs. There are some difference, although the basics remain the same. Then about 500 years ago, this Thanakvasi sect came, which said that they don't do idol worshipping. It's different from the Shvetambars and the Digambars, both do idol worshipping. The Thanakvasis don't do. And then from there emerged another sect which said that we need to be more organized, was a Therapan sect. So this is the hierarchy of the sects, various sects. But within this whole thing, also there are different guts. See what happened in the 6th century BC, when this religion became more profound. So there were so many people who were wanting to be a part of this system and adopt Jainism, that they felt that they felt a need to reorganize and restructure the entire population in such a manner that they could be managed by the acharyas, the teachers, the munis, etc. So a number of gachs came into existence. At that point of time, there were 84 gachs. And गच को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? गच ये एक तरह से जैसे एक फैक्शन है, फैक्शन जैसे आप सपोज ये नोएडा है, जैसे सेक्टर्स हो जाते हैं. ओके. तो एक सेक्टर हो गया, एक गच हो गया, दूसरा गच हो गया, तो वो हर एक गुरु उनके अलग अलग हो जाते थे. They would take care of their gachs. So, but in the early 19th century, late 19th century and the beginning of the 20th century, most of these gachs became extinct, and we are left with only 4 gachs. The Tapa gach, Khatar gach, and so on. Only 4 are left. The others are also small. तो ये तो हमारे गच्स के बारे में हो गया. इसके बाद जो है कि आचार्य और वो क्या हमारी नॉमेनक्लेचर क्या है, तो हमारे इसमें जो सिस्टम होता है, जो मंकहुड अडॉप्ट करते हैं, सो इट इज अ प्रोसेस कॉल्ड दीक्षा. जो जब दीक्षा होती है, whether young or old or at whatever age the diksha takes place, there is a process of taking the diksha. So the first nomenclature or identity given to the person who takes diksha is Muni. मुनि के बाद फिर एक हायरार्की बिल्ड होती है. As they grow higher, they improve their knowledge, they improve their learning, they improve on their conduct, and so the hierarchy goes up. So from Muni, then we have Gani, then from Gani we have Upadhyay, and then from Upadhyay we have the Acharyas. So Acharya is basically somebody who's supposed to be the most knowledgeable person and a repository of all the scriptures and the various facets of the religion. And then if there are many acharyas in a particular gach, they have to have a head of even those acharyas and the entire following of their asceticism. So he is called the Gachadipati. Oh. So basically Gachadipati is like the president. Then you have a cabinet of acharyas, and then junior, and then you have the munis. And then we have the shravaks. Together, the sadhus, sadhvis, the shravak, shravikas, they constitute what is called as Chaturvid Sangh. That is the nomenclature. It's very interesting, sir. ये बहुत कुछ जान रहे हैं. इतना तो डिटेल हमें पता ही नहीं होता जब तक हम इन डिटेल स्टडी नहीं करते हैं. तो आज आप आए, आपसे हम बहुत कुछ जानेंगे और जैनिज़्म के बारे में. और सिंस आप कॉरपोरेट में भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिसमें आप लगातार उसके बोर्ड में मेंबर हैं और एडवाइजरी बोर्ड में अपने रहे हैं, अभी भी हैं. तो एक वहाँ रहना ऐसे बोर्ड में जहाँ एकदम मटेरियल वर्ल्ड में हैं आप, जहाँ आपके बहुत सारे दायित्व कर्तव्य हो जाते हैं कि आप मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे आपके पास देश का भी ऐसे
गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ जो हैं इम्प्लीमेंट करने हो रहे हैं। और अलग एक है कि आप रिलीजन को, कल्चर को भी आप एक तरह से आप उसको भी एडप्ट कर रहे हैं और उसके अंदर भी हैं आप। तो दोनों का कैसे हो रहा है, दोनों कैसे कर लेते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुझे खुशी है आपने ये पूछा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा ये निकल के आएगा कि हम जो रिलीजन में सीखते हैं उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा सा एक वो कनेक्शन आएगा। रिलीजन जो है, देखिए मैंने एक, हमारे बहुत बड़े गुरु होते थे, तो हम बहुत इंटरफेथ पे काम करते हैं और वहाँ पे हर फेथ वाले अलग अलग सवाल उठाते हैं। एक कॉमन सवाल होता है कि रिलीजन की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे बताइए कि रिलीजन की डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने काफ़ी सोचा और उन्होंने कहा, वो समझ गए मैं किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, तो बोले जो चीज़ मन की सरलता पैदा करता है मन में, वही रिलीजन होता है। अब आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो हर रिलीजन में टारगेट इज योर मन, कि हम मन को सरल कैसे बनाएं। अब सरल, शांत, निर्मल का क्या मतलब है कि हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। सो आइडियली वी हैव टू शेड दीज नेगेटिव थॉट्स, think positively, think of coexistence, think that I am not the only living being on this earth. There are so many millions and billions of others who are living on this mother earth. And ये तो पंच इंद्रिय हैं, बट हमारा कंसेप्चुअल पार्ट ये है कि वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, थ्री इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, all living beings. They are a part of our family. We consider the universe as the living beings, the jivas. Can be a single sense jiva, double sense, triple sense, fourth sense, and the fifth sense which we are. So it is not that if there is something single sense we can treat it in a merciless manner. We have to have even compassion with that. अब जब हम ये compassion, एंगर का कंट्रोल, डिसीट का कंट्रोल, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, तो इसको हम वहाँ बोर्ड रूम में भी लेके जाते हैं। बोर्ड में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि या तो मैं भी बोलूं, मैं भी लड़ूं, दूसरा कि नहीं, आई रेस्पेक्ट योर व्यूज। तो बोर्ड रूम में इस तरह के अक्सर डिसीजंस जो लेने होते हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते हैं और उसमें बहुत बहस होती है, और बहस से कई बार उसको पर्सनली लोग ले लेते हैं और एक तरह से एंगर, एनिमोसिटी पैदा हो जाती है। अब मैं अगर ये सोचूं कि मेरे को तो ये सिखाया गया है कि हाउ डू आई मेंटेन माय कूल एंड काम एंड पीस एंड स्टिल फाइंड ए सॉल्यूशन, तो मैं उसको ऐसे ही कहता, भाई आपका एक नज़रिया ये है, पर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं हमें पहले उसके बेनिफिट में सोचना है। आपका बेनिफिट, मेरा बेनिफिट सेपरेट है, और उसके हिसाब से ये चीज होनी चाहिए, और मैं बड़े प्यार से, शांत भाव से बोलूंगा। लड़ने की क्या जरूरत है? आप देखते हैं दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ स्टूडियो से बाहर निकले, आपने टैक्सी करे, वहीं रेड लाइट पे लड़ाई हो जाती है। आप आगे जाएं तो ओवरटेक कर रहे हैं, कोई लड़ाई हो गई। वहां से आगे जहां आप उतरे वहां किसी ने टक्कर मार दी, तो लड़ाई हो रही है। बट उस चीज को रिजॉल्व करने का एक एमिकेबल तरीका भी है, और जो बेस्ट तरीका हमेशा होता है कि हम उसको पीसफुली कैसे डेवलप करें। वी रिस्पेक्ट कि गलती हो गई, चल भाई आपसे गलती हो गई, लेकिन अभी तो हम जिसको चोट लगी उसको ठीक करें ना, मेन प्रॉब्लम वो है। तो वी हैव टू डिफ्यूज दी सिचुएशन। कुछ लोग इसको शायद डिप्लोमेसी कहते होंगे, डिफ्यूज कहते होंगे, लेकिन हमारे इसमें जैसे अनेकांतवाद है कि एक ट्रुथ जो है, ट्रुथ कैन बी सीन फ्रॉम मेनी पर्सपेक्टिव्स, और वो पर्सपेक्टिव भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो वी एग्री दैट इट इज देयर, बट देन दिस इज माय पर्सपेक्टिव। इफ यू एग्री फाइन, अदरवाइज आई रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव, बट आई विल फॉलो माय पर्सपेक्टिव। बेसिकली जैनिज्म में यही मैं देख रही हूँ, जब से आपसे बातचीत कर रही हूँ, मुझे इतना ही लग रहा है कि
पीसफुल, शांतिवाद, जो भी इस तरह के बातें जो हैं जी, शांति से काम लेना, पीसफुली चलना, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट, काटपीट, ये सब से आप लोग बहुत दूर रहते हैं। इवन आर्ग्यूमेंट, उनसे भी आप बहुत दूर रहते हैं कि एमिकेबली कैसे सेटल हो जाए चीज़ें और किस तरह हम एक सोल्यूशन में क्विक पहुँचे रादर फाइटिंग ओवर थिंग्स। ये आपका एक दृष्टिकोण है। और सत्यता के सत्य के साथ रहे। देखिए, जो सत्य है वो सत्य है, ट्रुथ है। तो मुझे अपने आचार विचार में जो सत्य बात है वो बतानी चाहिए। कई बार कॉर्पोरेट उसमें, सपोज मेरी कोई जिम्मेदारी है और मैंने कोई काम लिया है, that I will finish this work and something goes wrong, then I have to be truthful and say, look, this has gone wrong. My intention was not that it goes wrong, but it has gone wrong. But we have to now find a remedy. एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि I try and hide what I have done wrong and I start blaming others. You didn't do this, you didn't do that. But that will only complicate the matters. And as a result, I am duty bound to serve the organization where I fail in my duty. So truthfulness is also important. तो इस तरह हम लोग, चूंकि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, तो हम एक तरह से, हमारा कई बार बहुत से लोगों में, ये नहीं कहूँगा कि सब लोगों में, देयर आर एबरेशंस आल्सो, एक ये इनहेरेंट हो जाता है। आप दुकान में आप देखेंगे जेंट्स ज्यादातर ट्रेड एंड कॉमर्स में है, बहुत ज्यादातर, क्योंकि हमें तो ये शायद आपको मैं प्रश्न करने वाली हूँ कि ज्यादातर आप लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में क्यों दिखते हैं? सभी बिजनेस में आप लोग नहीं आते हैं जी। इसका कोई कारण? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे हैं या बिजनेसेस ऐसे हैं जो हम लोग सोचते भी नहीं है, करने की तो बात दूर की है। अब वो कहाँ से इमर्ज होता है? तो हमारा प्राइमरी एक जो सबसे पहला है अहिंसा एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, जियो और जीने दो, दीज आर इंटरलिंक्ड। सो एनीथिंग विच will lead to destruction of any living beings of any number of indriyas, whether single indriya, single sense, we are not supposed to do. तो जैसे आप बोले कि कोई बुचरी है या मुर्गी पालन का बिजनेस है या अंडे का बिजनेस है, इस तरह की चीजें हमारे इसमें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें हिंसा है इस तरह की, that is prohibited, so we don't take up those trades. इसीलिए आप देखेंगे कि जो इसके अलावा जो है ट्रेड है, उनमें आपको कपड़े के बिजनेस में मिलेंगे, डायमंड में, गोल्ड में, ज्वेलरी में, मे बी अ फ्यू ऑफ देम इन डेयरी सेक्टर, देन किराने में, इस तरह की चीजों में लोग ज्यादा, हौजरी में है, इन तरह की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें जो बेसिक तरीका है ये एक नॉन वायलेंट तरीका है काम करने का। दैट इज द मेन रीजन। तो नॉट ओनली आप लोग जब कुछ भी, जहाँ रोजगार की भी बात आती है, वहाँ भी आप सोचते हो कि नॉन वायलेंस के ऐसे कोई काम से हम रोजगार ना करें कि वहाँ से वो पैसा भी आपको नहीं चाहिए, वैसे पैसे भी आपको। जी, हमारा मतलब ये है कि जो एक अच्छे तरीके से कमाया गया पैसा है उसकी वैल्यू अलग है, एक गलत तरीके से कमाया गया है उसकी वैल्यू अलग है। और इसमें देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैल्यूज व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस। हमारे इसमें जो कर्मा की फिलॉसफी है, इट इज प्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ द सोल्स एंड द जीवास, सो द finishing the final finish of the soul's goal to reach salvation and the moksha is obscured and restricted by these karmas which get attached to the soul. पाप और पुण्य जैसे होते हैं, तो हम जितने पाप के रास्ते से काम करेंगे, झूठ बोल के करेंगे, राग से करेंगे, द्वेष से करेंगे, गाली दे के करेंगे, मार के करेंगे, तो वो तो मेरे कर्म चिपक गए। तो वो कर्म तो ऐसे होते हैं कि वो इन मॉनेटरी टर्म्स तो उसको असेस ही नहीं कर सकते। वो कर्म तो मेरा पीछा हो सकता है कई कई हजार साल ना छोड़ेंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो ये कर्म का ऐसे हो कि कर्म बंधन ना हो, ऐसे कार्य करो।
एक बहुत अच्छी, ये तो एक जो शिक्षा के पार्ट में भी इसे भी आप देख सकते हो, ये अदरवाइज भी ये एक बहुत अच्छा एक हैबिट है जो हम लोगों से माफ़ी मांगना और कोई भी अपना जो गलती है वो गलती स्वीकार करना, एक बहुत अपने आप में बहुत अच्छा एक हैबिट है। जब आप एक माफी का एक्ट कर रहे हैं तो आपने ईगो और प्राइड को एकदम से हटा दिया और एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि माफी मांग के तो बड़े बड़े जो युद्ध रुक गए। तो जिसको हम ये अपना दुश्मन समझते हैं उससे भी माफी मांगते हैं तो उसके मन में भी फीलिंग आती कि ये इतना बड़ा आदमी है, ये मुझसे माफी मांग रहा है, तो उससे जो द्वेष है, राग है, वो भी दूर हो जाता है। आपने अपने ईगो और प्राइड को दूर किया, उसने माफी मांगी, आपका राग द्वेष दूर हो गया। ये सारे कर्म है जो चिपक जाते हैं हमारे साथ। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना राग द्वेष हो जाए, वैसे कायदे से तो हमारे जैनिज्म में ये प्रोसेस डेली बेस पे होता है। एक प्रोसेस है जिसमें हम समायक कहते हैं और प्रतिक्रमण कहते हैं। तो प्रतिक्रमण इज ए प्रोसेस वेयर वी ट्राई एंड फॉलो द पेनेंस एंड वी थिंक, हम चिंतन करते हैं कि व्हाट डीड्स वी हैव डन ड्यूरिंग द डे व्हिच वर नॉट द राइटफुल डीड्स एंड देन वी पनिश आवरसेल्व्स। कैसे करते हैं अपने आप को, क्या बोलते हैं? देखिए, पनिश करने के लिए ये है हमारे एक, मतलब आप उसको एक तरह से पनिश कह सकते हैं, पेनेंस भी कह सकते हैं, एक रिस्ट्रेन भी कह सकते हैं, उसको अलग अलग नजरिया है। तो हालांकि वो हो सकता है कुछ लोग उसको पनिशमेंट समझे, बट वो एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। जैसे हमारे इसमें होता है कि व्रत रखने पड़ेंगे या मौन व्रत रखने पड़ेंगे। मौन व्रत इज ऑल्सो एक्चुअली उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बट वो कहेंगे हम मौन रहेंगे, हम 2 दिन बात नहीं करेंगे किसी से। So it's a self-restraint. So anything which is a self-restraint is almost like a punishment. जैनिज्म के अलावा और जो फेथ हैं, तो वो उसमें से कुछ डिफरेंस है जो अंडरस्टैंडिंग में, जो आपकी फिलोसफी और उनकी फिलोसफी में कुछ? हमारे इसमें ये है कि एक तो मेन बात ये है कि the universe has not been created by anybody. It is eternal and self-created, self-regulated. Whereas in some other religions, they may attribute the origin of universe to some gods. We don't say that. We say that the souls are there and the souls have been there and they regulate themselves with the karmas, the shedding of karmas. Some go to the Siddha-kshetra, they remain there, while the others they keep changing. There are 8.4 million types of living beings on this earth. So at any given time, we are one of those which can have a life of few seconds up to few 100 years also. So we are part of that, and this chakra of life and birth automatically goes on based on the karmas we have done and the karmas we have accumulated, and it will keep going on an auto mode till the time the souls achieve salvation. दूसरा ये है कि जो हमारे इसमें जिस डिग्री और इंटेंसिटी से हम फॉलो करते हैं, दैट इज वेरी प्रोफाउंड। जैसे अगर हमारे साधु हैं, दे हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ मंकहुड, देन व्हेन दे आर टेकिंग दीक्षा दे हैव टू आल्सो टेक दिस पंचव्रत, तो उसमें ब्रह्मचर्य भी है। तो हमारे इसमें ब्रह्मचर्य का मतलब है कि पहली बात तो ये कि नॉन पोजेसिवनेस जो होती है, जो साधुओं का है, दे कैन नॉट ओन एनीथिंग, nothing can be owned by them. They have to only beg and take from others and then survive. और उसमें भी लिमिटेशन है, क्या ले सकते क्या नहीं ले सकते। सो बेसिकली उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, पैसा छोड़ दिया, मीन्स ऑफ कंफर्ट सारे छोड़ दिए, और वो जिंदगी भर उसको टच नहीं कर सकते। हम तो ऐसे भी सुना है कि वो लोग ट्रैवल भी चल के ही करते हैं। जी, उनको ये जो मोटराइज्ड मीन्स है, जो स्कूटर है, कार है, प्लेन है, इसमें नहीं कर सकते। इनको पैदल ही विहार करना होता है, चाहे दिल्ली से उनको चेन्नई जाना हो, 2 भी वॉक करके जाएंगे। यहाँ से आसाम में जाना होगा कहीं। अभी हमारे गुरुजी है आचार्य भगवंत,
गच्छाधिपति विजय धर्म धुरंधर सूरी जी साहब है, ये अपने एक ग्रुप लेके पैदल पाकिस्तान जाके आए। हमारे जो सबसे बड़े गुरु हैं उनकी वहाँ पे चरण पादुका है, तो इनका बहुत मन था कि वहाँ जाके आए, देख के आए, तो इवन लाहौर म्यूजियम तक यहाँ से पैदल जाके पैदल वापस आए। तो उनको तो पैदल ही चलना पड़ता। हाँ, एक थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, नीज वगैरह वो हो जाती, तो या तो वो थाना पत्ती ले लेते, मीन्स कहीं बैठ जाएंगे, या फिर उनको व्हील चेयर परमिट अभी कर दी है, क्योंकि वो जब चल ही नहीं सकते हैं बट स्टिल विहार करना है, तो वो उनको ये करना पड़ता है। अभी आपके जैनिज्म के जो टेम्पल्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड इन इंडिया तो बहुत हैं। ये भी मैं कहूँगा कि एक इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे जो आइडल वर्शिपिंग है और जो टेम्पल्स में वर्शिपिंग होता था, ये आज का नहीं है, इट इज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। तो उस समय से हमारे जो है मूर्तियां और टेम्पल्स बनने शुरू हो गए थे। और चूंकि एक समय ऐसा था 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, लॉर्ड महावीरा के बाद का समय एक गोल्डन ईरा था, जब बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी में, दे हैड अडॉप्टेड जैनिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। आई वुड से बुद्धिज्म आल्सो केम अ लिटिल आफ्टर जैनिज्म। लॉर्ड बुद्धा वाज ऑलमोस्ट लाइक अ कंटेम्पररी ऑफ लॉर्ड महावीरा, बट दे अडॉप्टेड। तो ये जो क्षेत्र था जहाँ वैशाली, जहाँ हमारे लॉर्ड महावीरा जी का बर्थ प्लेस है, वहां से लेके अप टू नेपाल में लुम्बिनी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिलीजियस बेल्ट बन गया था। और फिर जब उसके बाद कुछ ऐसे समस्या हुई, ये करीब ये पीरियड चला है करीब 800-900 साल, 1000 साल गोल्डन पीरियड चला है। तो लाखों में जो लोग हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन फिर 6th सेंचुरी AD में बहुत बड़े फैमिन्स आए, स्पेशली इन बिहार, मगध रीजन। वो फैमिन्स में बहुत तरह की समस्याएं हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त इतने थे कि लोगों का रहना, जीना, खाना पीना सब एकदम मुश्किल हो गया था। तो दे स्टार्टेड मूविंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड दे वेंट टू साउथ, दे वेंट टू ईस्ट, दे वेंट टू नॉर्थ। मतलब आप जाएंगे, अगर तमिलनाडु में जाएंगे वहाँ भी टेम्पल्स हमारे मिल जाएंगे आपको। आप पाकिस्तान में जाएंगे वहाँ भी टेम्पल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान का मेजर ट्रेड एंड कॉमर्स वाज कंट्रोल्ड बाय द जैन्स। I myself, my mother has come from Pakistan. She was born in a place called गुजरावाला। तो वहाँ से वो आए हैं। जब 47 में हमारा पार्टीशन हुआ है, तो हमारे गुरुजी सारे जैन्स को लेके आए हैं, लेकिन अपनी धरोहर जो टेम्पल्स हैं, आज भी वहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वहाँ पे छोड़े हुए हैं। तो कंट्रीब्यूशन इज सो इमेंस इन एवरी फील्ड दैट इट इज रियली एस्टोनिशिंग। क्या आप दर्शकों के लिए कुछ मैसेज, यंग जनरेशन के लिए कुछ मैसेज जो आप देना चाहेंगे? जी जरूर, बहुत पर्टिनेंट आपका ये पॉइंटर है, एंड मोर सो इट इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट टुडे, you know, because the world is going through a very very difficult phase, and this phase is not going to be a small phase. As per the Jain cosmology, we are in the 5th ara of the downfall. There will be a 6th ara, and this particular phase after Lord Mahavira is supposed to be of 21,000 years, and then comes the next era before the again the up journey starts. जहाँ से सनातन में बोलते हैं ना, जिस सत्य युग वो आएगा, तो उसमें इतने साल हैं, तो हमारे को अभी भी कल युग में इतने साल निकालने हैं। अब वो तो एक, अगर नेचर ने कह दिया कि इतने साल हैं वो निकालने, हम उसको डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कम कर, और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कम करने के लिए अगर थोड़ी बहुत मूलभूत चीजें हम फॉलो कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि चूंकि जैनिज्म बोलती है, मैं कहता हूँ कि एक ह्यूमैनिटी का रिलीजन भी ये कहता है कि इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो ये ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं इसको करेंगे तो ये हो। तो आप देखें कि आज दुनिया की ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो राग, द्वेष, हिंसा, ये सारी समस्याएं हैं, और इसका जो मूलभूत कारण है वो है इंटॉलरेंस।
everybody says that I am the supreme, you are nobody, you follow me. हम कहते हैं कि आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, आप वो करिए जो आप कर रहे हैं, बट आप अपने तरीके से करिए, मैं अपने तरीके से करूं. सो टॉलरेंस एक बहुत बड़ा इशू है. दूसरा, वी नीड टू कंसिडर द एंटायर यूनिवर्स, द वर्ल्ड एज वन फैमिली. एज आई सेड कि अलग अलग इंद्रियों के जीव हैं. जिस दिन हम सोचने लगे कि हम एक परिवार है तो हमारी सोच बदल जाएगी. मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं आप पे टैरिफ लगा दूं, मैं उस पे टैरिफ कम कर दूं. ये भी एक तरीका है विच यू नो कैटलाइजेस सच इल फीलिंग्स. तो मैं बोलूं नहीं, देखो मेरे पास है तो तुम नहीं भी दो तो भी ठीक है. सो दैट इज नॉन पॉजेसिवनेस, अपरिग्रह. कि नो आई हैव इनफ मनी यार, तुम्हारे देश के पास नहीं है, कोई बात नहीं है, तो मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा. आपके लोगों को भी खाना पीना है, उनको भी लिविंग, दे हैव टू आल्सो हैव अ लिविंग स्टाइल, सो आई कैन डू दैट. सो दिस बिकम्स द नॉन पॉजेसिवनेस. वी हैव टू बी ट्रूथफुल. नहीं, हाँ मेरे पास इतना पैसा है, आपको जरूरत है, आप मेरे से ले जाओ, ठीक है. इसके बाद इसी तरह दान की भावना होती है. ये है सारी. सो बेसिकली दिस इमर्जेस फ्रॉम टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट and peaceful coexistence. These are the things which come out of this. एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे 3 मुख्य ज्वेल हैं, that is सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चारित्र. हमारे को अगर मोक्ष का पाथ चाहिए तो वी हैव टू हैव दिस राइट बिलीफ, राइट नॉलेज. आज एक बहुत सुंदर फ्रेज, एक बहुत सुंदर वाणी कही है. इससे हम एंड कर रहे हैं अपना शो कि बिलीव इन ट्रुथ, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड प्लीज़ डू दैट फॉर द ट्रुथ. और हमारे टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस के लिए जो भी करना चाहिए उसमें भी हमको ट्रूथफुली रहना है. तो इट्स वेरी नाइस संजय जी, इट्स आवर प्लेजर दैट यू हैड कम ऑन आवर शो, एंड थैंक यू सो मच.